know they can in the interview also you can go through that. Anything having the potential to cause harm. Yes, what anything having the potential to cause harm. Yes, like we can see, like suppose you are having the pen in your hand. If you put your pen in your eye by mistake, so that time there will be problem into the eye. So that time the pen become the hazard. Yes, all animals come into the category of the hazard. Yes, hazard means in Hindi we can say hanikarak. I think Kannada also the same word hanikarak. Yes, yes, so that is the hanikarak. Yes, that is the hazard. And risk is the khatra, danger. Yes, that is the, in the danger will be the, just for explaining I am telling danger, don't use the word danger. There is a khatra. Yes, danger include the fear also. Yes, but in the risk there is a fear is not involved. If the fear factor is involved, it become the danger. So we should be clearly should know what is the meaning of the hazard. Anything potential to cause harm. Yes, anything. If you are going to drive the bike, there is a chances of accident from the bike. So that time the bike is a hazard. If you are drinking the water, yes, 1 glass water you are drinking. If you drink the 2 liter water in a one sip, it will become hazard for your health. So whatever you see in this world, everything is a hazard. Yes, you have to give around some 20-30 example. Just note down. And there are the 5 type of basic hazard classification is there: physical hazard, chemical hazard, biological hazard, economics hazard. Yes, and psychological hazard. Yes, 5 type basic. Other category also there. 5 type of hazard. Always remember hazard definition. It should be always on your lips. Yes, because you are going to become the all are going to become the safety officer. Hazard. Immediately they will ask. You have to give the immediately answer. Anything is potential to cause harm is known as the hazard. Yes. Even then in your house, whatever item you are seeing. Yes. Suppose you cement. Cement is a hazard. Table. You can have a trip. Yes. You can strike with the table. So that time a table is a hazard. Yes. From the laptop, the heat is coming. Radiation is coming. That time laptop is a hazard. So, but we consider only occupational level. Occupational. Occupational means at the workplace. So workplace hazard we are only going to consider basic broad classification is the 5 types. Yes, you can remember physical hazard. In that electricity you told Surendra ji, whosoever told. So electricity coming into the physical hazard category. Yes, that list you can see in other books also it is there. It's not part of the industrial safety, but I am trying to convey you once again for revision. Yes, chemical hazard, biological hazard, economic hazard, and psychological hazard. Psychological means your manager is giving you a lot of pressure, and due to out of pressure you do some mistake. That is a psychological hazard. So, and after it we come to the risk assessment. So we should know what is the risk. Yes, that hazard can impact. Due to that impact, some severity will happen. That is known as the risk. You should know. After it, we will cover the permit to work system. The permit to work system, the full form you can note down. The full form. Yes, permit to work system. Tomorrow we will, if we class is there, again definitely, or whenever class is there, PTW. Sir, in short form, it is known as the PTW. Anyone can Google and can find out PTW. Yes, yes, PTW, permit to work system. Wherever the risk is involved, we have to need the license. We need. I just want to ask Santosh Kumar Nayak sir. Sir, do you have a license for your bike? Just want to know. I think you may be having the bike or some 2 wheeler, 4 wheeler. सभी लोगों को बताता हूँ तो एलएल क्या है, गवर्नमेंट का लीगल रिक्वायरमेंट है. लीगल रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो बाइक चलाने का जो काम है वो रिस्क की एक्टिविटी है, रिस्क उसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व होने की वजह से क्या है, वहां पे जो पहले ड्राइविंग सीखा हुआ है, द पर्सन हु हैज लर्न द ड्राइविंग, वो ड्राइविंग सीखा हुआ है, ड्राइविंग सीखने वाले को ही लाइसेंस दिया जाएगा. तो पहले उसका जो है लाइसेंस देने से पहले ड्राइविंग टेस्ट होता है. ड्राइविंग टेस्ट वो क्लियर कर लेता है. वो अलग चीज है कि वो पैसा लेते हैं क्या लेते हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग, उसका हम लोग डिस्कस नहीं कर रहा है. वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल दैट थिंग कि पहले उसको ड्राइविंग सीखना है, फिर एलएल उसको चलाने के लिए भी एलएल देना है. एलएल में भी 3 महीने के बाद में फिर उसको प्रैक्टिस करके फिर उसको डीएल देना है. क्योंकि उसमें क्या है, यदि कोई आदमी जो है जिसके पास जो है ड्राइविंग नहीं आती है, कार लेके जा रहा है, तो रोड पे क्या कर देगा, वो एक्सीडेंट कर देगा. एक्सीडेंट करेगा, लोगों की जान चली जाएगी, है ना, दूसरा प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगा. ठीक है, होगा नहीं होगा सर? होगा. तो वहां पे क्या होता है, लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस इशू करना है. तो क्यों जरूरत है? क्योंकि रिस्क है, गाड़ी चलाने में रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं है? सुरेंद्र जी बताइए, गाड़ी चलाने में रिस्क है या नहीं है?
Yes, sir. There is a risk, sir. हाँ, देयर इज ऑलवेज रिस्क. यस, पढ़नेश जी आप बताइए, रिस्क है नहीं है? Yes, sir. There is always risk. There is always risk when anyone is driving the vehicle in the world, whether he is a senior person, he is a junior person, whether he is driving the Mercedes, whether he is driving the Maruti, any vehicle he is driving into the world, there is always, with a forklift, whether overhead crane, whether the industrial vehicle, whether the lorry, truck, dumper, crane, hauler, whatever. Yes, so there is a risk. So we need the license for that. लाइसेंस को क्या बोलते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी की लैंग्वेज में? उसको बोलते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम. यदि परमिट टू वर्क सिस्टम नहीं होगा जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है जिस काम को करने से, ठीक है. मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक आप वर्क एट हाइट पे काम करते हैं, है ना, हाई राइज बिल्डिंग है 50 मीटर, यस, उस पर काम कर रहे हैं ऊपर, तो रिस्क इन्वॉल्व है. मान लो कुछ भी हुआ तो वर्कर विल फॉल डाउन इमीडिएटली एंड इट विल बी ए worker will fall down immediately. It will be an accident. And it will create an accident. Yes, 100%. So we need the permit to work system. So always remember the small form PTW. Yes, they may ask in your interview what is the meaning of PTW. So please remember what is the PTW. Tomorrow I will ask what is the PTW. Yes, detail we will study. I just want to know the full form. Permit to work system. हाँ, permit to work system. Yes, डिटेल जब चैप्टर आएगा, जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. यस, चैप्टर 5 एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट. एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एक्सीडेंट क्या होता है? दुर्घटना. यस, जब कभी भी क्या होता है सर? एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सीडेंट क्या होता है सर? कोई भी बताइए सर. आप कुछ भी बोलिए, गलत होगा तो क्या है, तभी तो हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. नहीं तो आप इंटरव्यू में जाके सेम ही चीज बोल देंगे और फिर उसमें आपको वो पुल द लेग करेंगे, ये क्या होता है, वो क्या होता है. तो यू हैव टू बी इन्वॉल्व फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर अपने बेनिफिट के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है. नहीं तो आई विल जस्ट स्पीक लाइक ए टेप रिकॉर्डर एंड आई विल फिनिश द क्लास एंड आई विल से माय वन टॉपिक इज ओवर. यस, तो सर एक्सीडेंट का क्या होता है? जगदीश जी, एक्सीडेंट क्या होता है सर? हाँ, व्हाट इज एक्सीडेंट? सुरेंद्र जी आप बताइए, एक्सीडेंट क्या होता है? Sir, it is an incident which comes unplanned, sir. Yeah, which causes unplannedly. Yeah, which causes unplannedly, yeah, unexpected, unplanned event. Yes, yes. Sir. Due to that, there may be some injury and the loss of accidents. Loss of accident, injuries, properties may happen. That is the accident. तो उसके बारे में पढ़ेंगे. एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक क्या है एंड थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट क्या क्या होता है. यस, किस किस टाइप से एक्सीडेंट होता है. इसके बाद सर हम लोग पढ़ेंगे जॉब सेफ्टी एनालिसिस. सर इसका शॉर्ट फॉर्म है JSA. इंडस्ट्री में बोला जाता है JSA. यस सर, नोट कर लीजिए JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, कार्य सुरक्षा विश्लेषण. यस, जब कभी भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उसका JSA बनाना होता है. You have to prepare the JSA format and you have to take approval from your project manager and the safety manager. Otherwise work cannot start. High risk activities के लिए. Yes. उसके बाद सर JSA, अभी मैंने आपको जो बताया, हीरा बताया है, PTW, JSA. उसके बाद इंडस्ट्रियल हाउसकीपिंग. यस, इंडस्ट्रियल हाउसकीपिंग वो स्टडी करेंगे. उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. यस, इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद चैप्टर 9 वर्क प्लेस इकोनॉमिक्स. चैप्टर 10 बिहेवियर बेस्ड स्टडी. शॉर्ट फॉर्म में इज नोन एज द, छोटे फॉर्म में होता है BBS, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी. उसके बाद चैप्टर 11, हाँ BBS बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, सेफ्टी वालों के लिए बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है BBS, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी. यस, क्योंकि जनरली क्या है, वर्कर लोग हम लोगों के साथ काम करने आता है, उनको हम सेफ्टी सिखाते हैं और वो 20-30 ईयर से अपना जिस गांव से एरिया से निकल के आ रहे हैं उनका वो बिहेवियर रहता है. यस, यस. इसके अलावा चैप्टर 11 फॉर्मेट फॉर प्रैक्टिस एंड लर्निंग. वी विल डिस्कस द फॉर्मेट, वी विल फिल द फॉर्मेट. उन फॉर्मेट को फिल करेंगे. 3-4 फॉर्मेट ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, वो फॉर्मेट आपको फिल करके मुझको सबमिट करना है, ठीक है. दैट इज द चैप्टर 11 एक्टिविटीज. चैप्टर 12 में क्या है, इंपॉर्टेंट सेफ्टी एब्रीवेशन. जो भी मैंने आपको अभी 3 फुल फॉर्म जो आपको 4 फुल फॉर्म जो, हाँ 4 फुल फॉर्म टोल्ड. यस, सो दैट 4 फुल फॉर्म, यस, दैट इज द नोन एज द एब्रीवेशन और इट नोन एज द एक्रोनिम.
यस, उसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन या एक्रोनिम बोलते हैं। Observation. ठीक है, क्लियर है सर? किसी को कुछ हो तो बताइए। अभी इसमें कोई यहाँ पे अभी हम अपना पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। यस, सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंडस्ट्रियल सेफ्टी। यस, क्या है, एक लाइन पढ़ लेते हैं रेड कलर में जो दिया हुआ है। सर एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम योर बुक, नथिंग इज कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। यस, आई थिंक ऑल पीपल कैन सी इट वेरी क्लियरली। यस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेफर्स टू द, हाँ बोलिए। Yes, so industrial safety refers to the management of all operations. सर जिस किसी के भी यहाँ से साउंड आ रहा है काइंडली उसको म्यूट कर लीजिए। अदर पीपल आल्सो गेटिंग द प्रॉब्लम, अदर लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है सर उससे। प्लीज रिक्वेस्ट, जो भी जिसके यहाँ से साउंड आ रहा है प्लीज। पढ़ने से आपके यहाँ से तो नहीं आ रहा है? I'm here, sir. Please English. Sometimes I miss you. हाँ संतोष कुमार, आपके यहाँ से इतना साउंड आ रहा है। देखिए सभी लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो औरों का भी ध्यान रखना है हमें लाइफ में। ठीक है, हाँ। इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑपरेशंस, एक्टिविटीज एंड इवेंट्स विद इन इंडस्ट्री, yes, in order to protect their employees and assets by minimizing hazard, risk, accident and near miss. Yes, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो यहाँ पे सर इंडस्ट्री का डेफिनेशन नहीं दिया है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में क्या होता है, रेफर्स टू द मैनेजमेंट करना पड़ता है ऑफ ऑल ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन उसके अंदर होते हैं। ये कोई फिजिकल ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज जो हो रही हैं, वो सारे ऑपरेशन को वहाँ पे जो है मैनेज करना है। इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड इवेंट्स विद इन एन इंडस्ट्री, एक कंपनी के अंदर, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉइज, किसको बचाना है, एम्प्लॉइज को बचाना है। एंड किसको बचाना है, एसेट्स को बचाना है, बाय मिनिमाइजिंग दी हजार्ड। जो मैंने बताया था हजार्ड क्या होता है, एनीथिंग इज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। ठीक है, तो जो भी चीज हानि दे सकती है, हानिकारक कर सकती है, उसको मिनिमाइज करना है। यस, रिस्क, किसको मिनिमाइज करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है। जो भी रिस्क वहां पे है उसको मिनिमाइज करना है। इसके अलावा एक्सीडेंट को मिनिमाइज करना है। एंड नियर मिस। सर नियर मिस क्या होता है, बताएगा सर कोई भी, नियर मिस क्या होता है? नियर मिस, जो पुराने स्टूडेंट हैं आई थिंक दे कैन टेल, वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जहां तक मुझे फीडबैक मिला है। नियर मिस का होता है सर नैरो स्केप, बाल बाल बचना। ठीक है, नियर मिस का होता है बाल बाल बचना। मान लीजिए आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और एक बाइक वाला बहुत तेजी से आपको जो है छू के निकल गया, बस बाल बाल बच गया। ठीक है, नैरो स्केप, यस, क्लोज एस्केप जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नियर मिस। तो क्या इसका डेफिनेशन होता है, ऑफिशियली इसका डेफिनेशन होता है, इट इज एन अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच हैविंग द पोटेंशियल टू कॉज हार्म बट डिड नॉट लीड इन एक्चुअल। ठीक है, हार्म कर सकता था लेकिन एक्चुअल में हार्म नहीं किया। ठीक है, कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप? एग्जाम्पल बताएंगे बाल बाल बचने का। जगदीश जी आप बताइए एग्जाम्पल नियर मिस का। कभी हुआ है नियर मिस? सर हुआ है कभी नियर मिस हुआ है? एनी टाइम नियर मिस आ गई थे? क्यों जगदीश सर, आप यू आर राइटिंग आई थिंक। सर हाँ, यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर मिस? नियर मिस क्या होता है, आई जस्ट वांट टू नो। ये नियर मिस, इन अर्थ नियर मिस का क्या मतलब है? उसके बाद मुबारक मोहम्मद जी से पूछेंगे। English, sir. English. सर सुन पा रहे हैं मुझे? पहले ये बताइए सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? जगदीश सर। सर आ रहे हैं सर। हाँ चलिए, सर। थैंक यू। ठीक है, हाँ उसके बाद ये मोहम्मद मुबारक जी, यू ओके, यू आर फ्रॉम दिस वन, ओके। परनेश जी आप बताइए व्हाट इज द नियर मिस, क्या होता है? अभी जो मैंने Yeah. बताया वही रिपीट कर सकते हैं। Here, not make damage or हाँ या मुबारक, इफ यू स्पीक इन इंग्लिश विद a loud mouth,
it will be audible to everyone and they can understand your accent. Yes, I can understand, but other people also should able to listen. Yes, sir. But like when you speak in Hindi, I couldn't understand you. It happens, no issue, है ना? Have a nice no issue. Yes, हाँ. So आकाश देसाई, sir, you tell what is the near miss, क्या होता है? सुरेंद्र, what is the near miss? कि आपने बताया कि बाल बाल बचना, हाँ, मतलब बाल अभी बाल हम यस, मशीन पे हम वर्कर कोई काम कर रहा है और अचानक से कुछ एक्सीडेंट होने वाला है जी, और उसको सेफ्टी ऑफिसर ने सडनली देख के उसको बाहर खींच लिया या उसको साइड में कर बाहर दिया, हाँ 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 हाँ, तो बच गया वो, हाँ यस, हाँ बच गया। बच गया, तो उसको बोलते हैं बाल बाल बचना। और इसमें क्या है, आपका कोई भी मटेरियल डैमेज नहीं होता है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होता है, किसी भी टाइप की इंजरी नहीं होती है, उसको बोलते हैं नियर मिस। जैसे आप घर में भी जाते हैं, घर में भी कई बार स्लिप हाँ। होते हैं, लेकिन आप क्या है तो लेकिन गिरते नहीं है, आपको चोट नहीं लगती है, स्लिप हो गए, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, नियर मिस होता है। तो दिन में हर किसी के साथ नियर मिस होता है, या हजारों बार लाखों बार हम सबके साथ नियर मिस हो चुका है, ठीक है, नियर मिस हो चुका है। मान लीजिए आपने कभी कभी कोका कोला की बोतल खोली और मुंह में डाला, मुंह की जगह वो आंख में चला गया, या जो है वो मुंह से निकल के वो कपड़ों पे आ गया, होता है सर कई बार ऐसा, तो वो क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। लेकिन कभी कभी आपकी जो एक्टिवनेस थी बॉडी की या माइंड की, तो उससे क्या हुआ कि इमीडिएटली आपने अपने आप को बचा लिया, बाल बाल बच गए आप, ठीक है, तो वो होता है नियर मिस होता है। सर हमको बहुत ये सब चीजें याद रखना जरूरी है, तो क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमारा सामना करना पड़ता है, हमें नियर मिस से सामना करना पड़ता है। यदि हमने अपना नियर मिस अपने कंट्रोल कर लिया तो हम अपने एक्सीडेंट कंट्रोल कर लेंगे, एक्सीडेंट कंट्रोल कर लिया तो वहां पे पूरा सेफ्टी आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो नियर मिस पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये छोटा सा ये 3 लाइनें हैं जो आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, ये अपने आप में बहुत है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेफर्स टू द मैनेजमेंट, सभी चीजों का मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑपरेशन एक्टिविटीज। ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन वहां पे होता है, चाहे वो कटिंग का है, मिलिंग का है, ग्राइंडिंग का है, कंस्ट्रक्शन का है, या इसके अलावा कोई टेक्सटाइल का है, केमिकल का है, एंड इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स विद इन एन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉइज, किसको बचाना है, एम्प्लॉय एंड एसेट को बचाना है, ठीक है। किसको बचाना होता है सर हमें कंपनी में, कौन बताएगा? 3 चीजें हमें बचानी होती हैं सर, हमेशा याद रखिए, कभी भी आप साइट पे जाते हैं 3 चीजें आपको बचानी होती हैं। क्या चीज बचानी होती है 3 चीजें? एक्सीडेंट से वर्कर्स को बचाना होता है, एम्प्लॉयर्स को बचाना होता है। हाँ हाँ ठीक है, वर्कर्स और एम्प्लॉयर एक ही हो गए। दूसरा? मिशनरीज सर। हाँ जी, दूसरा मिशनरीज। मशीनरीज को बचाना है, यस करेक्ट, 100% करेक्ट। और तीसरा? सर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी सर। हाँ, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, हाँ, करोड़ रुपए पड़ा हुआ है वो लेके भाग जाना है ना? हाँ, और क्या, आग लग गया तो यही करते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं, मूवी में, वो सब बचा लेना है। कौन सा डॉक्यूमेंट बचाएंगे? सैलरी स्लिप, जहाँ पे आपका कंप्यूटर वाला फाइल है, पर्सनल फाइल लेके भाग जाना है। हाँ लीगल डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, तीसरा चीज में कौन सा डॉक्यूमेंट? लीगल रिजल्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट बचा लेना है, लीगल डॉक्यूमेंट बचा लेना है। हाँ चलिए मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। तीसरा होता है सर एनवायरनमेंट, हमेशा याद रखिए 3 चीजें बचाना होता है, ठीक है। पीपीई सर, किसको पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है सर, कौन बताएगा पीपीई फुल फॉर्म? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बहुत अच्छा। अब ये इसका दूसरा एक याद रख लीजिए हमेशा, जब कभी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, आपका जो सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है 3 चीजों को बचाना, पीपल को बचाना, प्रॉपर्टी को बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना, ठीक है। अलग से कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, वही सेम पीपीई का फॉर्म, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। क्या है? पी फॉर पर्सनल, तो पीपल को बचा लिया, ठीक है, प्रोटेक्ट कर दिया इक्विपमेंट को, और ई फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। 3 चीजें आपको हमेशा बचाना है, इंटरव्यू में है इमीडिएटली पट से बोलना है, ठीक है। यू हैव टू सेव द 3 थिंग्स वंस एनी गो एनी इंडस्ट्री,
पीपीई हमेशा याद रखिए, ठीक है। ये अपना बनाया हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। पीपल को बचाना है। पीपल को क्या बोलते हैं हम लोग कंपनी में? एम्प्लॉय बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? वर्कर बोलते हैं, या उसको लेबर बोलते हैं, या उसको स्टाफ बोलते हैं, ठीक है, या मैनेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को बोलना है, ऑल पीपल, ठीक है, पीपल। और इसके अलावा क्या करना है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या आ गया? बिल्डिंग को बचाना है, मशीनों को बचाना है, डॉक्यूमेंट्स को बचाना है, प्रोसेस को बचाना है, रॉ मटेरियल को बचाना है, फिनिश गुड्स को बचाना है, सब कुछ बचाना है। और तीसरा क्या है? एनवायरमेंट। और तीसरा क्या है? एनवायरमेंट को बचाना है। जब कभी भी एक्सीडेंट हो तो चलो यार आग लगने दो, ऐसा कुछ नहीं है, एनवायरमेंटल को भी बचाना है अपने। ऐसा नहीं है कि केमिकल रिलीज हो गया। विशाखापट्टनम में सर गैस रिलीज हुआ था, सबको मालूम है? नहीं मालूम है? यस सर, मालूम है सर। हाँ मालूम है ना। और वो यदि वो Yes, गैस sir. रिलीज होने तो कंपनी में तो सब सेफ है, कुछ फायदा बचाना है ना। एनवायरनमेंट में लोग रहता है ना, एनिमल्स रहता है, बर्ड्स रहता है, प्लांट्स रहता है। यदि वो सब लोग इन्फेक्ट हो गया तो आदमी भी ऑटोमेटिकली इन्फेक्ट हो जाएगा। यस, जैसे भोपाल Yes, गैस sir. कांड में हुआ, वहां पे जो गैस निकला तो पूरा एनवायरनमेंट वहां का कैसा हो गया? टॉक्सिक हो गया, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया। तो हमें तीनों चीजों को बचाना है, पीपल, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट। हमेशा याद रखिए सर, इंट्रो में आता है, नाम चेंज कर दीजिए, वर्कर, स्टाफ, ये वो, ठीक है, इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट एंड एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या है? ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉय एंड एसेट्स बाय मिनिमाइजिंग द हजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट एंड नियर मिस। यस, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डेफिनेशन है, एक लाइन का 2 लाइन का डेफिनेशन है, याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि कभी इंटरव्यू होता है तो आप बोल सके। इसके अलावा सर क्लियर है सर? कोई डाउट है तो बताइए। स्टिल एनी डाउट इज देयर, यू काइंडली आस्क।